Welcome to my class, student. It's class 8 English. It so happened this is chapter 5 Princess September and this is session 5. We are doing question answer of this chapter. In this beautiful story you have come to know about the value of freedom, and this story tells beautifully the relation between the princess and her pet, the little bird. And the story gives us a message that if you love someone, let the person free, because if the person will lose the freedom, then he will start hating you. So to keep the person's love alive, you will have to grant freedom to that person or the bird or the animal, whatever the thing that you love. So here the question answer of this chapter. Now comprehension check. This is page number 38. How many daughters did the royal couple have? See, it is not clearly written in the story how many daughters. But here we can count January to September. So there are 9 daughters. So here the royal couple had 9 daughters. Why were they named after the months of the year? ऐसा कैसा अजीब सा महीनों के ऊपर नाम दिया गया? They were named after the months of the year because their parents were confused in remembering so many names. अगर उनका नाम सीता, गीता, मीता, हरिता जो भी रहता तो कितना कंफ्यूजिंग होता, तो इसीलिए उन्होंने कैलेंडर के महीनों के नाम ही अपनी बेटियों को दे दिए, क्योंकि वो इससे कंफ्यूजन से बच गए. The king had a peculiar habit. What was it? Why is it called peculiar? The king's peculiar habit was that instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. क्या करते थे? वो अपने बर्थडे पर instead of receiving gifts, वो गिफ्ट्स देते थे. It is called peculiar because usually people receive gifts on their birthday. क्योंकि जब हमारा बर्थडे आता है तो हमें क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है कि हमें गिफ्ट्स मिलेंगी, लेकिन राजा की एक बहुत ही अच्छी आदत थी, अच्छी बोल सकते हैं हम, और थोड़ी अजीब आदत थी, वो दूसरों को गिफ्ट देते थे. What was Princess September's reaction to the loss of her parrot? Princess September burst into a flood of tears at the loss of her parrot. वो आंसुओं के बाढ़ में बह गई. See how it is written, burst into a flood of tears. She kept crying and nothing comforted him. तो वो इतना रोई कि कुछ भी उसको कंफर्ट नहीं कर पाया. मेड्स ऑफ ऑनर्स, उन्होंने कई सारी उससे अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन उसको किसी से भी सुकून नहीं मिला. What was her mother's reaction to it? तो मम्मा का रिएक्शन कैसा था? Her mother declared it as nonsense and said that she should go to bed without any supper. तो मम्मा थी, वो स्ट्रिक्ट थी, रानी थी, उन्होंने कहा एक पैरेट के मरने पर कोई इतना रोता है क्या, चलो उसको ऐसे ही रोने दो और उसको आज रात का खाना मत दो. What do the reactions indicate about the nature and temperament of each? यहाँ each कौन है? मम्मी और बेटी, दोनों के नेचर में क्या डिफरेंस है, that the question is. So you will have to write it separately. The princess reaction indicates that she was a young sensitive child. जो प्रिंसेस थी उसका पेट गुजर चुका था, तो उसको बहुत रोना आ रहा था. उसकी लाइफ का पहला कोई था कि जो उसकी लाइफ से दूर हो चुका था, और वो एक बहुत ही सेंसिटिव बच्ची थी, तो इसीलिए उसको उसके रिएक्शन से यही उसके नेचर के बारे में पता चलता है. That is why she cried over the loss of her parrot. Being young, being sensitive, she started crying over the loss of her parrot. It was a very important thing for her, क्योंकि वो पैरट उसके लिए बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो लोग दिन भर में 1 घंटा पैरट के साथ बिताती थी, उसको सिखाती थी लैंग्वेजेस बोलना, और पैरट ने सीखा भी था 2 सेंटेंस बोलना, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली. The loss of her parrot filled her with grief. तो सब राजकुमारियों के पास उनके पैरट से इसी का पैरट मर गया, तो उसको बहुत ही दुख था. नाउ मदर कैसी है उनकी? Her mother's reaction indicates that she was a little harsh. मम्मा थोड़ी हार्श है, मम्मा थोड़ी स्ट्रिक्ट है. She did not understand her daughter's grief. उन्होंने अपनी बच्ची के दुख को नहीं समझा and consoled her, और इसलिए उसने उनको
सहानुभूति भी नहीं दिखाई, उसको कंसोल भी नहीं किया. She did not think that the dying of the parrot was in any way a significant incident to shed tears. उन्होंने ये नहीं सोचा कि पैरेट का मरना एक सही रीजन है रोने का. तो उन्होंने ये नहीं समझा और उन्होंने क्या कहा कि ये बहुत ही नॉनसेंस एक्ट है, बहुत ही बचकानी, बहुत ही बेवकूफ़ी वाली एक्ट है. देखो ये सारे आंसर्स यू नीड टू लर्न एंड यू विल हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस इट because it's written in the story and the way it is written we'll have to write the incidents accordingly. What pulled the princess out of her gloom? Princess को उसके दुख से किसने निकाला? When the princess were lying on her bed crying, she saw a little bird hop into her room. जब वो राजकुमारी अपने बिस्तर पर पड़ी पड़ी रो रही थी तो उसने देखा एक छोटा सा पक्षी उसके पास आया. She wiped her tears and heard the beautiful song that the bird sang. तो उसने अपने आंसू पोंछे और वो खूबसूरत सा गीत उसने सुना जो कि पक्षी ने गाया. This brought the princess out of her gloom. तो वो जो बिल्कुल ही उदास हो गई थी, लोनली हो गई थी, अपने आप को अकेला फील कर रही थी, तो उस दुख से, उस दर्द से उसको निकल के बाहर आ पाई. How did the maids of honor come to know that the princess and the bird had become intimate friends? कैसे पता चला maids of honors को कि वो पक्षी और वो प्रिंसेस सितंबर बहुत पक्के दोस्त बन गए थे. When the maids of honor brought in the princess breakfast, they saw the bird eat rice out of her hand. तो उन्होंने क्या देखा कि प्रिंसेस सितंबर के हाथों से वो छोटा सा पक्षी खाना खा रहा था. And have its bath in a saucer. This showed them that the princess and the bird had become intimate friends. The new bird was full of new songs, but the old parrots always repeated themselves. What did they say? अभी जो old parrots थे, all the old parrots could say, God save the king, and some of them could even say Pretty Polly in 7 languages, 7 different Oriental languages. But वो जो नया bird जो था, वो बिल्कुल ही नए गीत गाता था. What is the king's opinion about his counselors? Why did he form that opinion? The king said that the parrots repeating Pretty Polly in 7 different languages reminded him of his counselors who said the same thing in 7 different ways. वो कहते हैं कि जिस तरह से वो प्रिटी पॉली 7 भाषाओं में वो पैरट्स बोलते थे, ऐसा लगता था कि जो काउंसलर है वो अलग अलग तरीके से सेम ही चीजें कह रहे हैं और वो उसको मीन नहीं करते, वो उसको फील नहीं करते हैं. एंड मैं नथिंग विच एवर वे दे सेड इट, और कैसे भी वो बोले बट दे डोंट फील इट, दे डोंट मीन इट. He formed this opinion because the counselor's behavior was similar to the way the parrots kept repeating what they had learned. क्योंकि जो काउंसलर थे वो भी तोते की तरह एक ही बात रखते थे और जैसे तोता है वो बिना सोचे समझे उसने वो लर्न कर लिया था प्रिटी पॉली, तो काउंसलर भी एक ही बात बिना सोचे समझे एक ही चीज कहते जाते थे. और इस तरह से ऐसा लगता था कि जो पैरट और काउंसलर दोनों की जो आदतें हैं, दोनों के जो एक्ट्स हैं वो सेम है, सिमिलर हैं, without knowing the meaning of what they said. क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि वो जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है. The 8 princes made an offer to Princess September. What was it? Why, in your view, did they do it? The 8 princes offered to buy a lovely green and yellow parrot for Princess September by putting in all their pocket money. यहाँ पर वो बहनें देखो अपने साथ पूरे पॉकेट मनी से उनके लिए ग्रीन और येलो पैरट ला के देना चाह रही थी. क्यों? क्योंकि वो बर्ड से उनको जलन हो रही थी. वो नहीं चाहती थी कि वो खूबसूरत सा बर्ड जो बहुत अच्छे से गीत गाता है प्रिंसेस सितंबर का पेट बने. क्योंकि राजा ने क्या कहा, उसके बर्ड की काफी प्रशंसा की और पैरट्स को उसने कहा कि एक ही चीज वो कहते रहते हैं. तो प्रिंसेस को बड़ा गुस्सा आया था, तो इसीलिए उन्होंने एक आइडिया बनाया और प्रिंसेस सितंबर को जाके कहा कि वो अपने पॉकेट मनी से उसके लिए पैरट खरीद के देंगी.
They did so because they were distressed by the fact that everybody was praising Princess September's bird. तो न सिर्फ प्रिंसेस सितंबर जो मेड्स ऑफ ओनर है, जो राजा है, रानी है, सभी उस पेट बर्ड की काफी प्रशंसा कर रहे थे, विच कुड सिंग, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाना गाता था, और बाकी के पैरट्स उसे 2 लाइनें बोलना सीखे थे. The parrots looked sad and repeated the same thing. तो उस पक्षी की प्रशंसा सुन के जो पैरट्स है वो बहुत ही सैड हो गए थे और वो एक ही लाइन बार बार बोलते थे. They wanted her to have the same pet as they had. So जो राजकुमारियां थी वो प्रिंसेस सितंबर को भी एक पैरट ही देना चाहती थी, ताकि कोई भी जो राजकुमारियों के जो पैरट है उनको नीचा ना समझे, उनको दुत्कारे ने उनकी भी प्रशंसा करें. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि whatever the fact that is written in the story, we have put the same fact in the answer also. Only the thing is that the direct answers, the direct dialogues has been converted into an indirect one. क्या हुआ, जब वो डायरेक्ट डायलॉग्स जो हमने किए थे उसको हमने इनडायरेक्ट वे में लिखा है, और ये जो चेंज ऑफ नरेशन है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीखने के लिए. और वंस यू स्टार्ट लर्निंग द आंसर्स, यू विल कम टू नो हाउ टू चेंज द डायरेक्ट डायलॉग्स इनटू एन इनडायरेक्ट वन. सो इट्स बेटर टू लर्न द आंसर्स. और जितने भी ये स्टोरीज में जितने भी शब्द यहाँ दिए हुए हैं, these are very very simple to learn. सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इसके स्पेलिंग्स गलत नहीं हो. आप अंग्रेजी लिखते हो तो योर स्पेलिंग्स मस्ट बी करेक्ट, और योर फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ऑल्सो मस्ट बी करेक्ट. सो बिफोर यू बी वेरी मच practice in this, you learn it and practice the same answer, so that you will soon learn how to write the correct answer. What did the sisters advise the princess to do about her bird? तो वो सारी राजकुमारियों ने क्या एडवाइस दिया? The sisters advised the princess to keep a bird in a cage so that she could be sure of where it was. क्योंकि वो जो बर्ड था वो मर्जी से आता जाता था, वो कभी भी बाहर जाता था, कभी भी आता था, और अगर कभी वो ना आ पाए तो नहीं भी आ सकता था. तो सारी सिस्टर्स ने प्रिंसेस सितंबर को कहा कि जो पेट होता है वो हमेशा आपके पास रहता है और आपको पता रहता है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है. लेकिन यहाँ बर्ड आपका पेट नहीं है, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ नहीं रहता है. तो उन्होंने क्या एडवाइस दिया कि आप अपने बर्ड को पिंजड़े में डाल दो. पिंजरा तो खाली पड़ा था क्योंकि वो पैरट गुजर चुका था. That she could be sure of where it was. तो उस खाली पिंजरे में उस बर्ड को डाल दो, ताकि प्रिंसेस को उसका इंतजार न करना पड़े और वो हर समय उसकी आंखों के सामने रहे. So what have we learned today? We have learned the comprehension check questions of the first part. आपने देखा कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे जाते हैं. आपको ये आंसर्स याद करने हैं जब तक कि आप खुद से सही आंसर्स लिखना न सीख जाएं. In the next class, in the next session, I will do the comprehension check part 2, question answer and the exercise also. Till then, revise it and be perfect in this. Thank you.